Good morning, students. Welcome. Today we are going to start lesson number 10, 3 sacks of rice. 3 sacks, I hope you understood. 3 goni rice ka. Okay, now let's start with our lesson. You may have read many stories about the 3 brothers. Usually 2 of them, the elder ones, are strong, clever, but unkind. They laugh at the youngest one because he is too simple and soft-hearted. In the first para what they are telling, you might have heard many stories about the three brothers. मतलब आप लोगों ने बहुत सारे कहानी सुने होंगे 3 भाइयों के, जिसमें से 2 भाई बड़े स्ट्रॉन्ग क्लेवर होते हैं लेकिन स्वभाव में अनकाइंड, मतलब स्वभाव के अच्छे नहीं होते, और छोटा वाला है जो बहुत ही अच्छा सिंपल रहता है, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन रहता है, मतलब दिल का बहुत सच्चा और अच्छा। इस तरह की काफ़ी कहानी आप लोग ने सुनी होगी। This story is something different from the usually what you have heard of seen. Our story also has 3 brothers who lived in a small town, but they are all 3 of them were honest, kind and hard working. So our story was there. This story is also about 3 brothers who lived in a small town, but all of them were honest, kind and hard working. बहुत ही मेहनती थे, स्वभाव के बहुत ही अच्छे थे और ऑनेस्ट थे। The elder one ran a shop, the middle one was a priest and the youngest one had just finished his education. The see here it is given, the elder one ran a shop, मतलब एक बड़ा जो लड़का था वो दुकान चलाता था, मतलब दुकानदार। The middle one was a priest, वो एक पुजारी थे, और द यंगेस्ट वन हैड जस्ट फिनिश्ड हिज एजुकेशन, वो हाल ही में अपना एजुकेशन पढ़ाई पूरी की थी, तो उसने अभी तक जॉब ज्वाइन नहीं किए थे। ही हैड स्टार्टेड वर्क टेकिंग हॉट जॉब्स टू अर्न सम मनी एंड टू लर्न हर ट्रेड। तो अभी वो छोटी मोटे, जो छोटा भाई था सबसे जस्ट एजुकेशन कंप्लीट किया, उसने छोटे मोटे से काम लेने लगे ताकि वो भी कुछ कमा सके। एंड यू वांटेड टू लर्न अबाउट ट्रेडिंग एंड ऑल, मतलब ट्रेडिंग, सामान का लाना जाना, ट्रेड जो किया जाता है वो उन्हें उसे लर्न करना था। ऑल 3 ऑफ देम वर फाउंड ऑफ देयर मदर्स, ऑल 3 loved their mother very much. She had worked hard to bring up 3 of them after the sudden death of their father. Means their father is no more, is dead, and their mother brought up with great difficulty. उनकी मम्मी ने, माँ ने उनको बहुत तकलीफ से उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था। One day their father's friend visited the mother. He said, "Sister, you know that I have a very prosperous business, but now I am getting old and my only daughter is of marriageable age. I am looking for a son-in-law who would be a good husband to my daughter and who would also handle my business well. I like all your sons. If you permit, I will marry my daughter to one of them, but before that I have a plan." Now what happened one day the friend of their father, यानी इन 3 भाइयों के जो पापा थे, पिताजी थे, उनके दोस्त वहाँ पे मिलने आते हैं और आके मिलते हैं उनकी माँ से। एंड व्हाट ही इज सेइंग दैट आई हैव ए वेरी प्रॉस्परस बिजनेस, मेरे जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही मुनाफा मुझे हो रहा है, और पर मैं अभी आई एम गेटिंग ओल्ड, नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड एंड माई डॉटर इज ऑफ मैरिजेबल एज, और मेरी जो बेटी है वो अभी शादी के लायक हो चुकी है, तो उसकी शादी करना है। एंड व्हाट इज सेज, आई लाइक ऑल ऑफ योर सन, मुझे आपके तीनों बच्चे पसंद है, पर उनमें से किसी एक के साथ मैं शादी करवाना चाहता हूँ, एंड आई हैव अ प्लान। तो दे बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर. He discussed the plan with her and she agreed quite readily. Now their father's friend discussed the plan with their mother and she agreed quite readily. The next day the friend went to each of the 3 brothers one by one. He gave them each a sack of rice and said, "My dear boy, I am going away for a few months for some necessary work.
Please look after this sack of rice till I come back. Now what did they do? The next day the friend of the father went to three brothers. उनके तीनों भाइयों के पास आते हैं. He gave them each a sack of rice. सबको एक एक गोनी चावल का बोरी वो देते हैं. And what he said, my dear boy, I am going away for few months. मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ. For some necessary work. Please look after this sack for rice till I come. और ये जो गोनी का चावल का गोनी मैंने आपको दिया उसका ध्यान रखे, मैं कुछ महीने के बाद लौट आऊँगा. The friend went away. Many months passed, but he did not return. Okay, many months passed, but still he didn't return back. It was nearly a year before he came back. He visited the eldest brother first. The eldest brother welcomed him and gave him a small purse full of money. Uncle, you had left a sack of rice with me for a few months. I was worried that it may get spoiled. Therefore, I sold the rice to my customers. Here's the money I got. Please accept it. So after almost a year, he returned back and first he go and visit the elder son. सबसे बड़े भाई को मिलने के लिए वो चले जाते हैं. अब व्हाट हैपेंड, तब बड़े भाई उसकी क्या बड़े ही प्यार से उन्हें उनका स्वागत करता है और बोलते हैं, अंकल यू हैड लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस. आपने मेरे पास एक बोरी चावल के रखे थे. मैनी मंथ पास आई वॉज वरीड इट मे गेट स्पॉइल्ड. तो बहुत महीने हो गए और मुझे लगा कहीं ये चावल ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने क्या किया, उनको कस्टमर को बेच दिया. एंड ये आई गॉट द मनी, प्लीज़ एक्सेप्ट इट. और उसे जो पैसे बेच के मुझे पैसे मिला वो मैं यहाँ पे आपके लिए रखा हूँ, आप उसे स्वीकार कर लीजिए. थैंक यू माई बॉय, यू आर सच एन ऑनेस्ट पर्सन. नाउ व्हाट दैट ओल्ड मैन इज सेइंग, थैंक यू करते हुए बोले, यू आर ए वेरी ऑनेस्ट. आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, ऑनेस्ट हो. Then the friend went to see the middle brother, who was a priest. The priest greeted him with joy and affection. He said, Uncle, remember you had left a sack of rice with me an year ago, and I kept it for many months, but then I was worried that it may get spoiled. I distributed the rice among the poor in your name. They all blessed you for satisfying their hunger. However, I did that without your permission, and I am willing to pay you back for the rice. Now after that he went towards to middle brother. बीच का जो मझला भाई था उसके पास चले जाते हैं वो. He also greeted him with joy and affection. बड़े प्यार से लगाव से वो उन्हें अपने बुलाते हैं, ग्रीट करते हैं. एंड he says, अंकल रिमेंबर यू हैड लेफ्ट अ सैक ऑफ राइस. आपको याद है आपने बोरी चावल मुझे दी थी अ ईयर एगो. आई केप्ट इट फॉर मेनी मंथ. मैंने उसे काफ़ी महीने संभाल के रखे. देन आई वॉज वरीड इट विल गेट स्पॉइल्ड, या खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने गरीबों में वो अनाज को बांट दिया और सबने दुआएं दी आपके लिए. एंड देन से सॉरी अंकल, मैंने आपके परमिशन के बगैर ये सब कुछ किया. अगर आप चाहिए तो वो जो बोरी का जो अमाउंट, द राइस ऑफ द अमाउंट ऑफ द दिस प्राइस ऑफ दैट सैक ऑफ राइस आई विल पे यू. जो बोरी का जो अनाज था उसका जितना भी कॉस्ट बनता है उसे मैं पे करूँगा. No, my boy, you acted wisely and kindly. The blessing that I got from the poor people are enough for me. Please don't even think about the money anymore. तो what that uncle is saying, no boy, don't give me the money. मुझे पैसे मत दो. जो ब्लेसिंग मुझे लोगों से मिली यही ही काफ़ी है, और इसके लिए तुम्हें गिल्ट फील होना ज़रूरी नहीं है. इट शुड नॉट इम्पोर्टेंट. When the friend went to visit the youngest son, he too welcomed him with love and respect, but he said that he had a confession to make. The sack of rice was lying with me for a long time, but then I had an idea. I often go to the neighboring farm to help with the work.
with the work. I borrowed an unused plot of land from the farmer. I exchanged the sack of rice for paddy and sowed the paddy in the plot. Fortunately, the crop grew well and yielded 25 sacks of rice. I kept back 5 of the sacks and sold 20 of them. Here's the money. If you hello, I would like to keep a part of my share considering the labor and the money I spent to get it all done. After this man, the friend of their father, go to meet the last son. सबसे छोटे वाले भाई से मिलने चले जाते. Then what is it? वो क्या बोलते हैं वो उनको अंकल को, सॉरी मुझे आपसे कुछ कन्फेस करना है. वो भी अच्छी तरह से स्वागत करते हैं उनके अंकल का, और बोलते हैं मुझे कुछ कन्फेस करना है. कन्फेस करना मतलब आप कभी कुछ करते हो और आप वो बात छिपाते हो, तो वो बोलते हैं मैंने कुछ ऐसा किया है जो मैं कन्फेस करना आपको बताना चाहता हूँ. तो बोलते हैं आपने जो मुझे गोनी दी थी चावल की, वो काफ़ी दिन तक मेरे पास पड़ा रहा. दैट वॉज लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई गॉट एन आइडिया. बोलते हैं आई गॉट एन आइडिया. आई ऑफन गो टू द नेबरिंग फार्म टू हेल्प विद द वर्क. तो बोलते मैं बाजू के जो ये है फील्ड है वहाँ पे जाके फार्मिंग में हेल्प करता. तो व्हाट आई डिड, आई बोरोड अ प्लॉट. वहाँ पे एक ज़मीन थी जो ऐसे पड़ा था. फार्मर से उसने खरीद ली और क्या किए, और वो जो वहाँ पे जो राइस का पैड उनके पास जो सैक ऑफ राइस था उसे उस फार्मर को दे देते हैं, और उसके बदले टेक्स द पैडी ऑफ इन द प्लॉट एंड सोड द पैडी इन द प्लॉट. तो वो कहते वहाँ से ये बीज लेके वो यहाँ पे बो देता है. यानी राइस के बदले बाकी के पैडी जो है बीज होता है उसे वहाँ पे प्लॉट में उस ज़मीन पे वो बो देता है. और उससे उनको क्या मिला, उसको 25 सैक्स ऑफ राइस. पैडी मीन्स यू कैन से, आपको पता है वो चावल का जो दाने होते हैं उसको ये किया जाता है, बोया जाता है, तो उसमें से अनाज उगता है, या वी कैन गेट अ लॉट ऑफ राइस ओवर देयर फ्रॉम दैट पैडी. तो उस तरह उससे 25 सैक्स ऑफ राइस बन जाते हैं, और उसमें से 20 वो सेल करता है, 5 वो अपने पास रखता है. व्हाट इज इट टू दैट फ्रेंड ऑफ हिज फादर. उनको बोलता है हियर्स द मनी. यू हेलो, आई वुड लाइक टू कीप अ पार्ट ऑफ माई शेयर कंसिडरिंग द लेबर एंड मनी आई स्पेंड टू गेट इट ऑल डन. तो बोलते हैं यहाँ पे देखो जो 20 सैक्स ऑफ गोनी जो है मैंने बेचे हैं उसके पैसे इधर है. कुछ ये मैं अपने पास रखूँगा क्योंकि मैंने वहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए मैंने काफ़ी उनके ऊपर उनका मजूरी वगैरह देने के लिए मैंने पैसे खर्चे किए, और कुछ चीज़ें लाने के लिए मैंने काफ़ी पैसे खर्चे किए. तो जो मैंने खर्चा किया अपनी तरफ से उसे मैं लेना चाहूँगा, और बाकी के जो पैसे हैं मैं आपको दे रहा हूँ. A wide smile spread on the friend's face. He had found his future son-in-law. और ये बात सुन के वो जो फ्रेंड थे, उनके पापा के फ्रेंड, उनको बहुत खुशी होती है. उनको तभी पता चलता है ही इज़ द राइट पर्सन टू गेट मैरिड विथ हिज डॉटर. उनको तभी महसूस होता है कि ये जो छोटा वाला लड़का है बहुत ही समझदार, बड़ों से दोनों से भी बहुत ज़्यादा समझदार है, और उनको लगता है कि वो ही उनकी दामाद बनने लायक है. एंड सो वो एक मुस्कुराहट दे देते हैं उनको. Got it? This is the story of the 3 brothers who are very honest, kind and hardworking people. 3 of them loved their mother very much. 3 of them used the 3 sacks of rice in their way. उनके अपने अपने तरीक़ों से उन्होंने ये किया. First one was the shopkeeper. So he First one was a shopkeeper. He was a shopkeeper, so he sold all the sacks of rice to the customer and earned the money. सेकेंड वाले जो पुजारी थे इन्होंने क्या किया, जो अनाज उनको मिला था एक बोरी, उन्होंने गरीबों में बांट दी. और थर्ड वाले ने क्या किया, वो राइस देके, वो गोनी के राइस देके दूसरा पैडी, मतलब जिससे बो के उन्हें अनाज मिल सकता है, वो पैडी उसने खरीद लिए, और अपने जो
सैक ऑफ राइस थे उसको दे के, और वहाँ पे खुद एक ज़मीन खरीद के उसने अनाज उगाए और उससे उसे काफ़ी फ़ायदा हुआ। उनको उससे 25 बोरी चावल के मिले, जिसमें से उन्होंने बेच के 20 सैक्स ऑफ राइस को बेच दिया। बाकी के जो रखे थे उन्होंने लोगों को खर्चा करने में, लोगों को लेबर को वगैरह जो भी खर्चा होता है उसका, और जो अनाज वगैरह लाने के लिए जो खर्चा हुआ, जो भी चीज़ें फार्मिंग के लिए ज़रूरत है वो परचेस करते हुए जो भी खर्चा हुआ, वो अमाउंट अपने पास रखते हुए बाकी के सारे पैसे वो अंकल को दे देते हैं। एंड ही वॉज क्वाइट वेरी हैप्पी टू सी द थर्ड लास्ट सन वेरी स्मार्ट एंड, और उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं उसके स्वभाव। एंड सो ही एक्सेप्ट हिम एज अ सन इन लॉ। दिस इज़ द स्टोरी। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे कुछ असाइनमेंट्स है, ऑपोजिट्स, ये आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। आपको अभी खुद क्वेश्चंस ढूंढ आंसर लिखने आना चाहिए पैसेज में से। सम ऑफ दम आई विल बी हेल्पिंग यू एंड रेस्ट ऑफ दम यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. Okay, bye. See you in the next lecture.